Now I'm going to start with the JE lecture for HDA chapter. In this particular lecture, I'm going to have a 10 MCQ, and all the MCQ are taken from good reference book. So I have written the one question, and a very important thing whenever you start solving the MCQ for organic, the first thing which we have to consider in mind is stability of organic compound, stability of intermediates. If you are able to understand this concept, you are able to solve all the MCQ of organic chemistry. There will be no doubt at all. So we'll stick to this when we are solving the reaction. Now see, in this particular reaction, this is your Grignard reagent, that is cyclobutane magnesium chloride, and this is a chlorobutane. So chlorocyclobutane and then cyclo magnesium chloride. So this is your GR, basically Grignard reagent, and the Grignard reagent is basically also called as an organometallic compound, and it is used for making कार्बन कार्बन बॉन्ड. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ यही है कि वो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म करके देता है. तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये जो मैग्नीशियम है, सिंस इट इज़ ए मेटल, सो इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ये जो आपका सिस्टम है साइक्लोब्यूटेन, सो दिस कार्बन विल बी गेटिंग इलेक्ट्रॉन रिच, दिस विल बी गेटिंग इलेक्ट्रॉन रिच. तो वो हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन एनायन. द मोमेंट इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन एनायन. सो दिस इज़ गोइंग टू मेक एन अटैक ओवर दिस, एंड ये यहाँ से आपका निकल जाएगा और ये आपका MgCl2 के साथ में कंबाइन हो जाएगा. सो द प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी हियर, दिस आर गेटिंग फ्यूज्ड, सो यू कैन हैव दिस टू cyclobutane connected, so which is given in option C. Okay, now question number 2. Now in this particular reaction you will find they are asking you the rate of SN1 reaction is faster with which of the given option. If you look at the SN1 reaction, so in the HDA theory lecture I had told you, if you find intermediate as a benzylic or benzylic and allylic both follows the same order, then we had a 3 degree, then we had a 2 degree, and we had a 1 degree. So this is a intermediate. Now if you see the first option, in the first option if you remove the Br minus and you imagine what is the intermediate, so this fellow gets a positive charge and the intermediate is like this CH with a positive charge, and this is a, so if you look at this carbon, so this carbon is getting stabilized by 2 benzene ring. Are you getting? So this is a type of benzylic system, so this is highly stable. If you look at this, so this is also benzylic system. If you remove this Br and you find there is a positive charge, but this is less stable as compared to the this one, because there is a 2 benzene ring and they are giving the electron, and this fellow is not getting electron from cyclohexane. Are you getting? So यहाँ से जब आप Br निकालेगा ना, तो there is only one ring attached to the cation which is giving electron. यहाँ से आपने क्या किया, Br को remove किया, you are getting the benzyl carbocation. But the carbocation, whenever you form, na, there should be electron donation to that intermediate. बात समझ में आ रही है? जो इंटरमीडिएट बना ना, ये जो बना था ना, तो इसमें क्या था, आपने 2 फिनाइल को साइड में लगाया तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था. दिस फेलो इज गेटिंग मोर एंड मोर स्टेबलाइज. यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है बट ये मैक्सिमम है, ये लेस स्टेबल रहेगा और ये भी लेस स्टेबल रहेगा. तो जो सबसे फास्टर SN1 रिएक्शन में जाने वाला है वो आपका ऑप्शन ए जाएगा. रीज़न मैंने पहले बता दिया, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर डिसाइडिंग एनी पर्टिकुलर रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या है. तो इसका इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग विद ऑप्शन ए. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव written, in the following reaction the most probable product, this is your reactant and you are introducing the nucleophile, and they have written here it is SN2 reaction. तो जब मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर लिया है उसमें आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 पढ़ाया मैंने, SN2 पढ़ाया है और SNI पढ़ाया है, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो SN2 रिएक्शन जो होता है ना, वो सबसे पहली बात तो वो 100% इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है. अब ये इन्वर्जन का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग का जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है
प्रोडक्ट उसका अपोजिट रह जाएगा। अगर स्टार्टिंग का स्टीरियोकेमिस्ट्री R है तो प्रोडक्ट आपका S हो जाएगा, और इफ़ इट इज़ S इट विल बिकम R। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड, सर हाउ टू प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज़ R और S। तो ये मैंने CIP रूल में बताया था। CIP रूल का जो लेक्चर लिया है मैंने, उसमें आप ध्यान से देखेंगे, ये जो ओरिएंटेशन है ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, बिकॉज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, आपने नंबरिंग दे देना है, सो दैट आपका काम आसान हो जाए। 1 नंबर ये मिथाइल है, 2 नंबर पे ये कार्बन है, 3 नंबर और ये 4 नंबर, बिकॉज हैलाइड इज एक्टिंग एज अ ब्रांच दैट इज़ अ लोकेंट, तो उसको हम लोगों ने पहले प्रेफरेंस देना है, सो दैट लोवेस्ट नंबरिंग शुड वी शुड गेट इट। तो अभी क्या है, 1 2 3 4, अभी यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये बेसिकली आपका 5 कार्बन का सिस्टम है। अच्छा, अब हमको असाइन करना है, कार्बन नंबर 2 कायरल है, कार्बन नंबर 3 कायरल, बिकॉज कार्बन नंबर 2 इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, मिथाइल, Br एंड दिस टोटल सिस्टम, एंड कार्बन नंबर 3 इज कनेक्टेड टू मिथाइल, इथाइल एंड H। नाउ द OH इज बट ऑब्वियस इट इज़ गोइंग टू कम ऑन द प्लेस ऑफ Br। सो द कार्बन नंबर जो 2 है ना, उसका अपने को पहले फाइंड आउट करना ओरिएंटेशन क्या है, डेजिग्नेशन मतलब R है कि S है, अकॉर्डिंग टू CIP रूल। और CIP रूल वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, दैट इज़ कॉल्ड एज अ गोल्डन रूल। इफ़ यू आर एबल टू रिकलेक्ट दैट्स गुड थिंग, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसको एक बार फिर से देख लीजिए। नो व्हाट इज़ अ गोल्डन रूल, वो मैं भी यहाँ पे बताता हूँ। सी, सबसे पहले आपने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसको असाइन करना है। आपका जो भी एटम है उसको बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर यू हैव टू जस्ट गिव द नंबरिंग। सो इट इज़ Br, this is CH3, this is hydrogen, this is methyl, this is ethyl C2H5 and this is hydrogen। so ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 नंबर है, ये आपका 4 नंबर है। सो नाउ सी वी गिव द नंबरिंग। सो द नंबरिंग ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ नंबरिंग को, ये अपने को क्लियर है, बिकॉज व्हेन आई विल राइट ऑन एटम का ग्रुप प्रेफरेंस तब प्रॉब्लम हो जाएगी। सी, अभी ये कार्बन कायरल है, तो Br इज़ हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हियर, सो 1 इज़ गोइंग टू बी विद द Br, 2 दिस कार्बन, तो ये उसके आगे या 3 एटम देखना है अकॉर्डिंग टू द CIP विच आई हैव डिस्कस इन द लेक्चर। तो इसके आगे 3 हाइड्रोजन एटम, इसके आगे 3, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज़ 1, दिस इज़ टोटल 2 एंड दिस इज़ 3, दिस इज़ 2। आर यू गेटिंग? सो यू हैव टू जस्ट सी द फ्लो ऑफ 1 2 एंड 3। सो 1 2 एंड 3 का जो फ्लो है वो क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंड यहाँ पे मैंने गोल्डन रूल बताना, पहले आप 1 2 3 देख लीजिए, 1 के बाद 2 है और ये 3 है। सो 1 2 3 कैसे जा रहा है, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। आर यू गेटिंग? सो इफ़ इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज इट शुड बी S, बट इट इज़ नॉट S, इट इज़ R, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल द लीस्ट प्रायोरिटी का जो भी एटम होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब था फ्रंट लाइन। तो जो 2 नंबर वाला कार्बन है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 पे जो है ना वो R है, क्या है, 2 पे R है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। अब हमको यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, प्रेडिक्ट करना है 3 नंबर वाला क्या है उसको भी मैं बता देता हूँ, तो आपको ईजी पड़ेगा। 3 नंबर पे क्या है, आई गेस यहाँ तक ईजी है। सी, अब आपने कार्बन हाइड्रोजन और ये आपका दिस इज़ टोटल डिफरेंट थिंग। सो दिस कार्बन और ये भी कार्बन, यहाँ से तो पता नहीं चला, उसके आगे के 3 एटम देखिए, तो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये Br है, तो ये 1 नंबर आपका मिल जाएगा ऊपर वाला। आर यू गेटिंग? सो दिस इज़ आई एम असाइनिंग फॉर दिस वन, तो ये इसको रफ कर देता हूँ मैं, ये आपका पूरा 1 नंबर हो गया, फिर ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। सो 1 2 3 कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, ये पूरा 1 है ना, और ये आपका 4 है। सो 1 2 3 1, this whole group 1, this is 2, this is 3, so it goes in this manner clockwise। so it supposed to be R, बट यहाँ पे भी 4 नंबर सामने आ रहा है, तो ये R नहीं रहेगा, ये S रहेगा। सो 2 नंबर पे R है, 3 नंबर पे S है। आई होप ये सिंपल मैंने समझाया है। अब आपने यही चेक करना है कि सब्स्टिट्यूशन तो 2 नंबर पे होने वाला है, तो जिस ऑप्शन में कार्बन नंबर 2 है उसका ओरिएंटेशन R नहीं है, इन्वर्जन हो रहा है, तो R का S हो जाएगा, दिस विल बी एज इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो चेंज एट ऑल। सो विल check it. Now if you look at the option number 1, what is going to happen here, you will going to give you this first preference, this is 1 and then this is carbon, but there is a clash, so there is a 3 hydrogen, this is carbon hydrogen, तो ये आपका 2 नंबर हो जाएगा और ये आपका 3। सो 1 2 3 और ये आपका 4 है।
सो 1 2 3 देखना है. सो 1 2 3 कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. आर यू गेटिंग? इफ इट इज़ गोइंग एंटी क्लॉकवाइज इट हैज़ टू बी एस, बट हाइड्रोजन सामने आ रहा है. अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल विल राइट इट आर. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो 2 नंबर पे बेसिकली बन तो रहा है एस ना, एंड उल्टा जा रहा है ना ये ऐसे, बट हम लोग इसको एस नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑफ गोल्डन रूल विल रिवर्स इट. तो ये हो जाएगा आर. तो आर आ गया, बट आना तो चाहिए था 2 नंबर पे एस. तो ये ऑप्शन आपका निकल गया. नाउ गो ऑन द ऑप्शन नंबर बी. सो यू पुट द नंबरिंग हियर 1 टू दिस. ये आपका 2 है, ये आपका 3 है. तो ये कैसे जा रहा है? नाउ दिस इज़ गोइंग इन द विच मैनर? एंटी क्लॉकवाइज. सो व्हेन इट इज़ गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज विल हैव टू जस्ट will 1 is given to this OH. ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, एंड दिस इज़ योर सॉरी 1, ये पूरा का पूरा 2 है, और ये आपका 3 है. तो 1 2 3 कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है. तो इसको हम लोग क्या लिखना चाहिए? आर लिखना चाहिए, बट इट इज़ नॉट आर, इट इज़ एस, बिकॉज हाइड्रोजन सामने आ रहा है. सो वो कॉन्फ़िगरेशन होगी, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज़ ही है. तो अगर आपने दोनों को मैच किया तो 2R था, यहाँ पे क्या है? 2S है, एंड 3S. तो ये आपका जो ऑप्शन है ना, ये बन जाएगा. द सेम कंसेप्ट यू विल अप्लाई इन द C and D. यू विल नॉट एबल टू गेट अ what actually we are expecting to get it. So the right option is here, option B. If you are having any doubt, please मेरे को comment box में पूछ लेना. Now in question number 4 we got a 1 2 3, that is a propanaldehyde or propanal. अब प्रोपेनल में आपने ऐड किया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज़ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो एज वी नो दैट फिनाइल का पार्ट जो है वो नेगेटिव होता है. सो नेगेटिव जो है ना आपका, दिस इज CH3, दिस CH3 विल मेक एन अटैक ओवर दिस CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH. अभी क्या होगा कि ये फिनाइल है, फिनाइल का नेगेटिव पार्ट जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिनाइल pH अटैच होगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव. मतलब ये दोनों प्रोसेस साथ में होता है, दिस इज़ नेगेटिव. ओके, सो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है इन व्हेन यू विल राइट ऑन द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. फिर यू आर एडिंग वाटर टू इट, तो ये OH फॉर्म हो जाएगा. अच्छा, अब आपने ध्यान से देखना है, ये समझा कि नहीं? फिनाइल ये कार्बन जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. सो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, so this fellow get a positive charge. So this positive is looking for some negative charge वाला fellow to attack. तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आके बॉन्ड बना देता है, और ये ऊपर O नेगेटिव होता है. O नेगेटिव को फिर वाटर मिल जाता है, वाटर का H+ मिल जाता है, तो वो OH हो जाता है. नाउ दिस कार्बन इज़ कायरल, कायरल बोलिए या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलिए. तो एक कायरल सेंटर जो होता है ना, वहाँ पे आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, R और S, एंड दैट इज़ बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर. वो क्या होता है आपका? रेसिमिक. वो R और S एक प्रकार से आपका इनैंशोमर भी होता है. क्या होता है? इनैंशोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. एंड व्हाट इज़ मीजो कंपाउंड? मीजो कंपाउंड उस प्रकार का कंपाउंड होता है जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए. क्या आ जाए? प्लेन ऑफ सिमेट्री. जैसे कि ये आपका कंपाउंड है लैक्टिक एसिड. क्या है? लैक्टिक एसिड. अभी लैक्टिक एसिड के अंदर कैसा है ना कि देयर इज़ अ कायरल सेंटर हियर एज वेल एज हियर, but this fellow is not able to rotate the plane polarized light. Now what is the process of rotating plane polarized light? ये हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखने वाले हैं. तो जब आप इसको बीच में से कट करोगे ना, ये ऊपर और नीचे का जो पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा. सो सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ मीजो कंपाउंड. आर यू गेटिंग? सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने अटैक कर दिया आपके प्रोपेनल के ऊपर, देन दैट इज गोइंग टू गिव यू द कायरल सेंटर, एंड द कायरल सेंटर वेयर एवर यू आर गेटिंग, वहाँ पे 2 आइसोमर बनता ही बनता है, and they are called as the enantiomers. So the right option here is a racemic mixture. Now in the question number 5 we need to find out what is the right option given. See, you got a reagent, Grignard reagent, and then you are adding here cyclohexene oxide. So what is going to happen here? See, the Grignard reagent always, whenever you do the reaction of Grignard reagent, never add a source of proton to the system. If you are adding Grignard reagent वाले रिएक्शन में सोर्स ऑफ प्रोटॉन, तो वो क्या करेगा? प्रोटॉन ले लेगा और हाइड्रोकार्बन बना देगा. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो pH है ना, दिस pH इज़
negatively charged, and this negatively charged, what it will do, it will take the H of the system. This will take a H of this particular system, और इसको जैसे ही H मिलेगा ना तो ये क्या बन के निकाल देगा, what it will form बेंजीन रिंग, और वो बेंजीन रिंग बन के आपका निकल गया. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अच्छा, अब इसमें होने क्या वाला है वो ज़रा ध्यान से समझते हैं. तो सबसे पहले ये जो है आपका फॉर्म करके बना देगा, दिस फेलो विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस, विल गिव यू O बॉन्ड MgBr, ये आपका OT. OAT का मतलब इथाइल है. क्या है? इथाइल. अच्छा, ये आपने पहले फॉर्म कर दिया पहला स्टेप में, और बाय प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन. ये बन के निकल गया फिनाइल प्लस H, दैट इज़ बेंजीन. नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, नाउ सी दिस योर जो आपका ये सेकंड वाला रिएजेंट अभी बचा हुआ है, अभी ये क्या करने वाला है. सो दिस इज़, आप इसको ब्रेक करके रखिए, इसको आपको ज़रूरी नहीं बॉन्ड बना के रखिए. दिस इज़ O नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव. नाउ दिस विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस. अभी ये क्या करेगा, ध्यान से देखना. दिस इज़ गोइंग टू मेक एन अटैक, आपका ये जो है O नेगेटिव प्लस, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ. दिस इज़ गोइंग टू बी O नेगेटिव OET. देखो ये इथॉक्साइड जो होता है ना, इथॉक्साइड्स आर बेसिकली गुड लिविंग ग्रुप, दे आर द गुड लिविंग ग्रुप. तो अभी इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अंदर शिफ्ट करेगा, और ये पाई बॉन्ड जो है इसका अटैक मारेगा यहाँ पे, और ये यहाँ से निकल जाएगा. फ्लो समझ में आ रहा है एरो का, इलेक्ट्रॉन का. तो अभी ये आपस में जुड़ जाएगा और ये फॉर्म करके देगा, दिस इज़ C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज़ मेकिंग एन अटैक ओवर दिस कार्बन. जिसको मैं ये बना देता हूँ, ठीक है. और ये आपका था O नेगेटिव. व्हाट इज़ दैट? O नेगेटिव. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सो दिस O नेगेटिव, नो, if you look at the given option, is it we are able to get something like this, is it available or not? तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन आपका ऐसा कुछ मिलता जुलता C में दिख रहा है, एंड देयर इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल. सो दैट सोर्स ऑफ प्रोटॉन जो है इसको H दे देगा, और ये आपका OH हो जाएगा. सो द राइट ऑप्शन इज. सबसे पहले यहाँ पे समझाना, आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया था मैंने, और फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आपने जब ये इसका रिएक्शन कराया तो इसने यहाँ से H ले लिया, और ये बेंजीन बन के निकल गया. So what is going to happen the next, this fellow is now going to react with this. तो ये एक्चुअली रीच है, तो रीच फेलो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलता है. तो इसका इलेक्ट्रॉन अंदर की की तरफ शिफ्ट किया, ये पाई बॉन्ड ने अटैक मार दिया इधर, और ये यहाँ से निकल गया. बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, इथॉक्साइड इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप. सो वी गॉट दिस प्रोडक्ट, एंड वैसे एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट ऑप्शन अपने को C दिया है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 6. In the question number 6, you can see that there is a alkyl halide given. In that alkyl halide, we want to introduce the water, and they are asking what is the right product. Simple सी बात है, ये जो alkyl halide है, halides are good living group, उसमें भी iodine best होता है, फिर आपका नंबर लगता है Br का, फिर क्लोरीन का. तो ये यहाँ से निकलेगा, तो this fellow will create a something like this. Now ये आपका जो है टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया. अब इसको ज़रा अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना वो चेक कर लीजिए. ये आपका 3 अल्फ़ा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 1 है. तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन इसको फिलहाल कितने दिख रहे हैं, 7 अल्फ़ा है. तो 7 अल्फ़ा है, तो इसमें मतलब इफ़ यू रिमूव दिस OH, यू विल फाइंड द सेम इंटरमीडिएट हियर. तो यहाँ पे 7 अल्फ़ा बन रहा है. अगर आपने इसको रिमूव किया, बेसिकली ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है. दिस इज़ ऑल्सो टर्शियरी. इफ़ यू रिमूव द OH एंड यू इमेजिन व्हिच कार्बोकेटायन वॉज देयर, बिकॉज जब पॉजिटिव रहेगा तभी तो OH माइनस अटैक करेगा. तो ये OH माइनस इस जगह पे अटैक कर रहा है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज है. तो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है, तो इसके पास अभी अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 है, और यहाँ पे कितना 1 है, 5 है. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सो वी हैव टू जस्ट सी द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, दैट इज़ अ हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोगों ने सीखा है. तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, दिस फेलो 3 + 3 6, एंड हियर 1 7. सो 7 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल. इधर कितना आ रहा है, 2 2 4, एंड दिस 5. सो मोर इज़ अ अल्फ़ा हाइड्रोजन, मोर इज़ अ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन ऑप्शन. तो इसमें से जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो आपका A बनेगा. सो वी आर एबल टू जज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स. सो दिस इंटरमीडिएट वॉज मोर स्टेबल, सो दिस प्रोडक्ट इज डोमिनेटिंग. ओके. नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 वी गॉट a 1 bromo 1 methyl cyclohexane, एंड नाउ वी आर एडिंग मिथाइलामाइन एज अ बेस. तो अभी ये क्या करेगा, बेस है तो सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन करेगा.
तो जो कार्बन आपका हेलोजन जिसको लगा है, तो ये आपका अल्फ़ा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, ये आपका बीटा है और ये आपका बीटा है. So now what the rule says that whenever you want to do the elimination, take out hydrogen from that beta carbon which have less हाइड्रोजन. तो लेस हाइड्रोजन तो मतलब इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो 3 वाला तो हम फिलहाल लेने वाले नहीं है. अगर वहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड बाहर की तरफ बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया है. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया था. और दूसरा क्राइटेरिया कैसे जज कर सकते हैं, देखो मतलब ये 99% टाइम तो करेक्ट होता है, बट फ्यू एग्जाम्पल्स में ये नहीं बनता है. इसको देखो, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 2, और ये 3 और ये 2. आर यू गेटिंग? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन काउंट करने का. तो यहाँ पे 2 है, इधर पे 2 है, इधर पे 3 है, तो मिला के कितना हो गया 7 अल्फ़ा. इसको कितना अल्फ़ा आ रहा है, 2 + 2 4 अल्फ़ा. सो मोर इज़ द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन in the system, more is the stability. So the right option is the B. So we are able to judge on the basis of elimination reaction as well as on the basis of number of alpha hydrogen present in the system. Now the question number 8. In the question number 8 you will find there is system given here 1 2 3 4. So we got a 4-chloro-but-1ene and then we got a acetic acid. So they are going to react and what is the product. So if you know the basic, अब इसमें क्या होगा ना कि ये जो आपका हेलोजन है ये सिस्टम से लीव करेगा. तो ये जैसे ही लीव करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव चार्ज अभी डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये क्या करेगा कि पाई बॉन्ड को फिर यहाँ पे ऐसे घुमा देगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा. तो सिंपल सी बात है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज़ लिविंग द सिस्टम. ये पाई बॉन्ड ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, तो वो क्लोज हो जाएगा. आर यू गेटिंग? सो दिस इज़ गोइंग टू बी दिस वे. ये यहाँ से क्लोज़ हो गया और इसको आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना तो ये बंदा भी डेस्परेट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमारे पास एसिडिक एसिड दिया ही है. सो वी गॉट अ OH C डबल बॉन्ड O CH3. तो इसके पास 2 लोन पेयर होता है, तो ये 1 लोन पेयर इधर अटैक कर देगा. तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के बगल में कौन आ गया, ऑक्सीजन. फिर इसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर वो लॉस कर देगा प्रोटॉन. सो वी आर गोइंग टू गेट मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ दिस सिस्टम. Then it is connected to, there is a carbon, the carbon is connected to oxygen, hydrogen, C double bond O CH3 and this is with the positive charge. फिर ये deprotonation करके निकल जाएगा and this proton will go with the your Cl minus and that will result in formation of HCl. Are you getting? तो ये आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट है, जो कि आपको ऑप्शन इट इज़ गिवन इन ऑप्शन, यहाँ पे नहीं है, या बी. So question number 8 में we got option B. If you are having any doubt, please comment box में आप मुझे ज़रूर पूछिए. Now we are going to with the question number 9. Now question number 9 ये बहुत ही important concept है, but इसके आने के chances बहुत ही कम है. But as far as the concept is concerned, तो मैं बता रहा हूँ. सी, आपने सीस एंड ट्रांस देखा होगा. ये अगर आप इस दोनों को भूल जाएँ, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और ये Br को, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, CH3 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 है, तो ये साइक्लोहेक्सेन ही है. इसको हम लोग चेयर फॉर्म बोलते हैं. ये भी आपका साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है. इस स्ट्रक्चर को मैंने इस फॉर्म में रेप्लिकेट किया है. क्यों रेप्लिकेट किया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा. तो ध्यान से देखिए, जब आपने इस कंपाउंड के अंदर ऐड किया स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ले लिया पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड, तो ये आपका बल्कि भी और एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है. तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कुछ फंक्शन होगा. तो सिंपल सी बात है, इसका फंक्शन वही है, एलिमिनेशन करना. अच्छा, अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, जब एलिमिनेशन होता है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आपने एक और चीज़ यहाँ पे अभी तक सुना नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ. देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अ एंटी पेरीप्लेनार कंसेप्ट. ये क्या होता है? देखिए, एंटी पेरीप्लेनार कंसेप्ट में कैसा होता है कि एक जगह से हाइड्रोजन लॉस होता है, कार्बन हाइड्रोजन, और एक जगह से कार्बन एंड लिविंग ग्रुप निकलता है. तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड और कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जो है ना वो एक्सियल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक्सियल. एंड
एंटी पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटी पैरेलल, मतलब एक वर्टिकल हो तो एक नीचे की तरफ हो, दोनों का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। एक्सियल तो समझ में आ रहा है, एंटी पैरेलल मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग एंटी पेरीप्लेनर बोलते हैं। अब ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या है ना कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें लिविंग ग्रुप कौन है? Br है। अच्छा, अब Br जो है वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालता है। कहाँ से निकालता है? बीटा कार्बन से, ठीक है। अच्छा, और ये आपका सीस है, और सीस एंड ट्रांस कैसे प्रेडिक्ट करते हो? देखिए ये दोनों ग्रुप जो है नीचे की तरफ जा रहा है तो सीस है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आर यू गेटिंग? अगर आपने यहाँ पे लाइन ऐसे खींचते चले गए और इस तरह से एक लाइन खींचते ऊपर चले गए, या वैसे भी इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी इक्वेटोरियल है। ऐसा वर्टिकल रहेगा ना कोई चीज़, ये एक्सियल है, ये क्रॉस आएगा तो इक्वेटोरियल, जैसे ये वर्टिकल है ना तो ये एक्सियल है। तो ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ सिस, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ ट्रांस। अच्छा, जब आपने ट्रांस वाले का एलिमिनेशन किया तो इसका स्पीड है ना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना इसका एकदम स्लो होता है, तो इट इज़ लाइक 1, रेट इसका 1 है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन ना दिस फेलो का 5 टाइम्स ज़्यादा है। दोनों का प्रोडक्ट यही है, हाँ, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ 500 टाइम्स फास्टर देन दिस वन। सो ये फास्ट क्यों है? अब हमारे को कैसा एनालॉजी के हिसाब से हम ये प्रोडक्ट बनाने वाले, बट इसके अंदर जो क्वेश्चन बनने वाला है वो ये बनने वाला है कि कौन सा स्पीड, किस रिएक्शन का स्पीड फास्ट है, तो उसी का फास्ट है जिसके अंदर ये वाला लॉजिक लग रहा है। अच्छा, अब देखो ये कार्बन है और ये Br है, लिविंग ग्रुप है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहली बात तो जो लिविंग ग्रुप है ना वो एक्सियल होना चाहिए, इधर एक्सियल है नहीं, कंसेप्ट इधर ही गलत हो गया। इधर कैसे ना Br यहाँ से निकलेगा और इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर आ गया डबल बॉन्ड। क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड जो तुम्हारा टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है उसे कितने नंबर पे? 1 2, मतलब उसके बगल में अगर आप देखा आपने तो 2 नंबर कार्बन के बाद दिस इज़ 1 2 3, 3 नंबर पे आ जाएगा। सो 1 1 2 3 इस तरह से जाएंगे तो यहाँ से गए तो आपका 1, दिस इज़ 1 2 3, हाँ थर्ड वाले पे आ जाएगा। यहाँ से जाएंगे 1 2 3, तो दोनों साइड से किस पे आ रहा है? 3 पे ही वो बनने वाला है। सो हियर वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। तो अभी जो इसमें आपका कंसेप्ट था, कंसेप्ट यही है कि एलिमिनेशन आपने कहाँ से करना है। तो एलिमिनेशन आप वहीं से करेंगे जहाँ से आपको आपका ये बनने वाला है CH बॉन्ड और C लिविंग ग्रुप एंटी पेरीप्लेनर है। आई गेस समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि इसका मैं अभी 2 और रिएक्शन लेने वाला हूँ कमिंग क्वेश्चन में। तो ये अगर समझा रहेगा एंटी पेरीप्लेनर का क्या कंसेप्ट है तो वो आपको अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि सेम रिएक्शन का 2 आंसर कैसे बन सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दोनों को अगर आपने ध्यान से देखा तो क्वेश्चन एक ही लग रहा है आपको, सही बात है, खाली ओरिएंटेशन अलग आ रहा है। ये जो आपका नाइट्रोजन है क्वाटरनरी, ये आपका वेज लाइन पे है और यहाँ पे डॉटेड लाइन पे है। ये मिथाइल आपका यहाँ पे वेज पे है, यहाँ पे वेज पे है। अच्छा, तो अगर आप कोई ध्यान से समझ रहा है तो यार ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ट्रांस बोल देंगे। इसमें कैसे दोनों की डायरेक्शन आगे की तरफ ही है, इसका मतलब ये सिस है। अब यही स्ट्रक्चर को मैं कैसे बनाऊँगा? साइक्लोहेक्सेन बनाऊँगा। किधर बनाऊँगा? साइक्लोहेक्सेन। सो व्हेन आई मेक इट इन द साइक्लोहेक्सेन, सो इन द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन 1,2 एक्सियल रहेगा ना, या फिर 1,2 इक्वेटोरियल कोई भी ग्रुप रहेगा, तो वो ट्रांस का केस बनता है। किसका केस बनता है? ट्रांस। बोथ आर एक्सियल और बोथ आर इक्वेटोरियल 1,2 पोजीशन पे, तो वो ट्रांस है। अगर एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है, 1 और 2 की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपका सिस बनता है। तो अभी इसमें कैसा है, मैं यहाँ पे इसको आपका दिस आई विल मेक इट ऑन द, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, इस पोजीशन पे एक्सियल कर दिया। नाउ एक्सियल पे मैंने जब यहाँ पे प्लेस कर दिया नाइट्रोजन विद 3 मिथाइल 2 मिथाइल एंड देन O नेगेटिव एंड दिस इज़ योर दिस मिथाइल। सो ये इस तरफ कर दिया मैंने,
ठीक है, ये आपका पहले वाले का ओरिएंटेशन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन ऊपर है और इसका भी डायरेक्शन ऊपर है, तो सिस हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब ट्रांस की बात करोगे तो इसको फिर मैं इसमें बना लेता हूँ चेयर फॉर्म में। सो अगेन विल हैव इज ए ट्रांस, मतलब एक लिविंग ग्रुप जो है उसको हमेशा आप कार्बन के परपेंडिकुलर ही रखिए। ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपका जो मिथाइल है ये ट्रांस है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये आपका नीचे जाएगा, तब जाके ट्रांस बनेगा ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब आपको देखना है कि जो हाइड्रोजन है वो एंटी पेरिप्लेनर है कि नहीं लिविंग ग्रुप के। मतलब लिविंग ग्रुप और ये जो है ना CH वाला बॉन्ड एंड C लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड जो है ना, वो पहली बात तो एक्सियल होना चाहिए